محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے والوں کے لیے جن 5 انعامات کا اعلان فرمایا انہی کا ذکر چل رہا تھا۔ پہلا انعام یہ کہ اللہ نمازی بندے کے رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں، بہت بڑا فائدہ ہے۔ ویسے ذہن یہی رکھنا چاہیے کہ ہم جو عبادت کریں گے وہ دنیاوی فائدے واسطے نہیں ہے، عبادت تو مقصود دنیاوی فائدہ نہیں، لیکن ہن ساڈا ذہن ہی بن گیا کہ جو دنیاوی فائدے واسطے تسی وظیفہ دسو تو وہ کرنا ساڈے واسطے آسان، پاویں وہ واسطے گھنٹا گھنٹا بیٹھنا پوے۔ ہاں عبادت نو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے کہ عبادت میرے ذمے ہے، میں عبد، میں بندہ، اللہ معبود، وہ مسجود، اس اللہ کا مجھے حکم ہے عبادت کرنا۔ اور نماز کے بارے میں تو سب سے زیادہ جو ذکر آیا، جو حکم آیا، بار بار تاکید آئی، وہ نماز کے بارے میں۔ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ لذکری۔ فرماتے میرے بندے مجھے یاد رکھنا چاہتا ہے نا، قرآن میں ارشاد ہے، اللہ فرماتے فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے تو مجھے یاد رکھا کر، میں اللہ تجھے یاد رکھوں گا۔ اب ایک یاد رکھنا یہ کہ میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، تسبیح میں نے لمبی ساری پکڑی ہوئی ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے بعض اوقات گل تسبیح ایک نہیں کئی تسبیح ہوں، موٹے موٹے وہ من کے دانے، نماز ایک بھی نہیں۔ بھئی اللہ والا چنگا اللہ والا ہو گیا بھائی، نماز کے بغیر کوئی اللہ والا بن نہیں سکتا۔ اور اصل جو ذکر ہے، اللہ فرماتے اقیم الصلاۃ لذکری، میرے بندے تو نماز پڑھے گا نا تو یہ تیرا نماز پڑھنا میری یاد ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے بندے تیرے نماز پڑھنا میرا ذکر ہے۔ اور نماز ہے ہی سارا ذکر، اللہ اکبر سے شروع اور السلام علیکم پر ختم، اللہ اکبر ذکر، ثنا ذکر، سورہ فاتحہ ذکر، قرآن سب سے بڑا ذکر، سبحان ربی الاعلی ذکر، سبحان ربی العظیم ذکر، درود شریف ذکر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ذکر۔ تو جس بندے کی زندگی میں نماز ہے گویا وہ اللہ کی یاد کی زندگی گزار رہا ہے، اور جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کی زندگی میں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر نہیں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم عبادت کریں گے اس اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس مقصد کے لیے نہیں کہ مجھے دنیا کا یہ فائدہ مل جائے، یہ فائدہ مل جائے، یہ فائدہ مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دنیاوی مقصد لئی عبادت کرنا یہ تو لالچ ہے، میرا فلانا کام ہو جائے، انسان ہے تھوڑا سا لالچی، میرا ہاں نفلی عبادات بندہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن فرض عبادت وہ صرف اور صرف اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ کی یاد، اللہ کا حکم، اور اسی کو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز 5 وقت پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی تنگی ہٹا دیتے ہیں، یعنی اللہ اس کو برکت عطا فرماتے ہیں۔ تنگی ہے، دوسری طرف برکت ہے، ایک طرف تنگ دستی ہے، ایک طرف فراوانی ہے، ایک طرف تنگ دستی ہے، ایک طرف فراخی ہے، تو نماز پڑھنے سے برکتیں آتی ہیں،
फरावानियां, फराखियां आती हैं, और नमाज छोड़ने से बेबरकती होती है। तो अल्लाह सबसे बड़ा जो इस दुनिया में आजकल मेरे और आपके टेंशन की चीज है वो भाई कितो खावांगे, आज दिहाड़ी नहीं लगी। यहां तक के इसी रिज़्क की खातिर हम नमाज छोड़ देते हैं। आजकल जाओ ना दुकानदारों के पास, कोई भी बंदा नमाज के लिए अपनी दुकान बंद करने तैयार है। हालांकि उस पागल को ये नहीं पता कि मैं नमाज के लिए जाऊंगा तो मेरे रिज़्क में अल्लाह बरकत देंगे, नमाज छोड़ूंगा तो रिज़्क की बरकत खत्म हो जाएगी। जिधर भी हम काम लगे हो, जिधर भी हो, बस ठीक, और नमाज नहीं पढ़ो जी काम लग गए सर, नमाज में नजर नहीं आ रहे हो जी काम लगे हुए। तो नमाज का पाबंदी के साथ पढ़ने का पहला फायदा कि अल्लाह रिज़्क की तंगी हटा दे। ये नहीं, साडा असल मसला ये है ना कि असि 2 दिन पढ़ लईए ना तो फिर असि वेखते हैं शीशे के अंदर कोई नूर शूर आया कि नहीं है। घर पहले पैगाम दे के पूछते हैं, हाँ भाई कोई बरकत आई है कि नहीं आई। कोई भी अमल जब तक वो मुस्तकिल ना हो, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन अमल वो अमल है जो हमेशा हो। वो इन कल्ला, थोड़ा है, फराइज का एहतमाम है, वाजिबात की अदायगी है, सुन्नत पर अमल है, ज्यादा नफल नवाफिल, ज्यादा नफली रोजे, ज्यादा नफली सदाकात उस बंदे की जिंदगी के अंदर नहीं है, लेकिन फराइज का एहतमाम है, फिक्र है, ताकीद है, तो अल्लाह उसकी वजह से इंसान को बरकत अता फरमाता है। और दूसरा ये कि उससे कब्र का अजाब हटा दिया जाता है, इस पर मैंने परसों तफसीलन बात की थी। तीसरा ये, क़यामत के दिन नमाज की पाबंदी करने वाले को नामा आमाल दाएं हाथ में मिलेगा। क़यामत का दिन बड़ा सख्त दिन है। कुरान करीम ने मुख्तलिफ ताबीरात से क़यामत के दिन की सख्ती बयान की है। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। क़यामत का ज़ल्ज़ला बड़ा सख्त है। काना मिक़दारुहु अल्फ़ सना, उस क़यामत के एक दिन का जो मिक़दार, एक दिन की जो मुद्दत है वो 1000 साल है। और दूसरी जगह कुरान कहता है 50 अल्फ़ सना, क़यामत का एक दिन 50,000 साल का एक दिन होगा। क्या कैफियत होगी जो हदीस में बयान की जाती है। एक तो क़यामत का आना है, वो तो बड़ा पुंजाल आएगा, निजाम दरम बरम हो जाएगा। आज थोड़ा सा जलजल आ जाए, थोड़ी सी तेज हवा चले तो नक्शा ही बदल जाता है। क़यामत का क्या मंजर होगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबे किराम ने देखे दाढ़ी में चंद बाल सफेद है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक साहबी पूछते हैं, रसूलल्लाह आपकी दाढ़ी में बाल सफेद हो गए। फरमाया मुझे फला फला सूरतों ने, जिन सूरतों में क़यामत की होलनाकी बयान हुई है, मुझे उन सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। क़यामत का वो मंजर, क़यामत का वो दिन जिसके बारे में कहा जाता है कि जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, और क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई और साया नहीं हो। हर बंदा, नीचे जमीन के तांबे का गर्म हो जाना, ऊपर से धूप और सूरज की तपश, हर बंदा अपने अपने पसीने में डूबा हुआ होगा। और आज दुनिया का जो पसीना है ना, ऊपर से नीचे को जा रहा होता है जमीन की तरफ। क़यामत के दिन का जो पसीना है वो नीचे से ऊपर को उठेगा, कोई गिट्टिया तक, कोई गोडिया तक, कोई नाफ तक, कोई कहां तक, कोई कहां तक अपने अपने पसीने में डूबा हुआ। इसलिए तो कहा जाता है कि वो दिन ऐसा दिन है जिस दिन कोई किसी का सोचेगा भी नहीं। शअनु युगनी, क़यामत का दिन ही ऐसा है कि उस दिन हर एक ने अपने अपने पाई होनी,
कोई किसी के बारे में तसव्वुर में भी नहीं आएगा, ख्याल में भी नहीं आएगा। उस दिन फिर जब अदालत लगेगी अल्लाह की, तो हदीस में आता है उससे पहले बंदों के नामे आमाल यूं मैदान महशर में फेंक दिए जाएंगे, उड़ा दिए जाएंगे। अब दुनिया में तो हम सुनते हैं ना कि जिसको नामे आमाल दाएं हाथ में मिलेगा वो कामयाबी का सर्टिफिकेट है, और जिसको बाएं हाथ में मिलेगा वो नाकामी का पैगाम है उसके लिए। तो कोशिश हर बंदे की यही होनी कि मैं सज्जे हाथ ना ली नप लाऊं, फरमाया नहीं, वो अम्मा मन ऊतिय किताबहू, वो लेगा नहीं, उसको उसका नामा अमाल दिया जाएगा, दाएं हाथ में यूं सामने दिया जाएगा। और अल्लाह माफ फरमाए, जिनके बारे में फैसला नामा अमाल के बाएं हाथ का, वो पीठ के पीछे से उसका हाथ घुमाकर उसको नामा अमाल दिया जाएगा, सामने होगा। इसलिए कुरान कहता है जिन्हों सज्जे आते जनामा आमाल मिलेगा वो लोगों को दिखाता फिरेगा, उठा उठा के लहरा लहरा के दिखाएगा। और जिसको पीठ पीछे बाएं हाथ पे मिला होगा वो लोगों से छुपाए फिरेगा, ताकि किसी को पता ना चले। जिਵੇਂ बच्चे होंगे ना, कोई फेल हो जाते ने, कोई पास हो जाते ने, जो पास हो गए होंगे ना वो अपना टाई या शर्ट या घुमा 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 कर दौड़े दौड़े आ रहे होते हैं, और जो बेचारे फेल हुए होंगे ने वो अपना रिजल्ट कार्ड छुपा के स्लो स्लो आ रहे होते हैं, ताकि जितने लेट बेइज्जती वाले मुकाम पे पहुंची है, घर अब्बू के सामने, अम्मी के सामने, बहनों भाइयों के सामने जितने देर नाल पहुंच जाइए उतनी बेहतर है। कुरान करीम ने दो जगह अमाल नामों का जिक्र किया है और अमाल नामों के दिए जाने का जिक्र किया है, एक 29वें पारे में और एक 30वें पारे में। 30वें पारे में मुख्तसर है, फरमाया अम्मा मन ऊतिय किताबहू बियमीनी फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, कि जिसको नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा ना, उसके साथ आसान हिसाब किया जाएगा। यानी उन्हें प्रोसेस तो गुजार के उन्हें कह देता जाएगा चल भाई जन्नत चल। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और यही जिसको नामा अमाल दाएं हाथ में मिला है ये अपने घर वालों के पास आएगा, खुश खुश दिखाता फिरेगा, हाँ भाई मैं पास हो गया हूं, मैं पास हो गया हूं, मैं पास हो गया। वअम्मा मन ऊतिय किताबहू वराअ ज़हरी फसौफ यदउ सुबूरा वयस्ला सईरा, और जिसका नाम अमाल उसके पीठ के पीछे से उसको दिया जाएगा, फसौफ यदउ सुबूरा, उस वक्त वो कहेगा हाय मुझे मौत आए, हाय मुझे मौत आए। सुबूर मौत को कहा जाता है। वयस्ला सईरा, और फिर उसको जहन्नम के हवाले किया जाएगा। क़यामत का जहन्नम का भी एक मंजर है जहां पर कुरान कहता है ये लोग मौत मांगेंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा ला तदउल सुबूरन वाहिदा वदउ सुबूरन कसीरा, एक बारी नहीं 100 बारी भी मौत मांगे, मौत होने आनी कोई। दूसरी जगह सूरह हाक्का में अल्लाह ने इसी मजमून को बयान किया है, नामा आमाल का जिक्र, नामा आमाल के मिलने का जिक्र। वअम्मा मन ऊतिय किताबहू बियमीनी फयक़ूलु हाउमुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुव फी ईशतिर राज़िया फी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअन बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। आज नामा अमाल उसको दाएं हाथ में मिला है, वो लोगों को दिखाता फिरेगा, अपनी कामयाबी का ऐलान करता फिरेगा, और जैसे ही उसके कामयाबी का ऐलान हो जाएगा तो उसके लिए जन्नत की खुशखबरी आनी शुरू हो जाएंगी कि भाई जन्नत है, जन्नत में ये तुझे मिलेगा, ये तुझे मिलेगा, ये तुझे मिलेगा। क़ुतूफ़ुहा दानिया, जन्नत का हर फल बड़ा करीब, ये हाथ आगे करेगा, फल खुद ब खुद इसके हाथ को आकर लग जाएगा और ये तोड़ के उसको खा ले। यहां दूसरा मंजर है, वअम्मा मन ऊतिय किताबहू बिशिमाली फयक़ूल
या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल काज़िया मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया खुज़ूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू। जिसको नामा अमाल बाएं हाथ में मिलेगा वो कहेगा काश मुझे नामा अमाल मिलते ही ना, आज मैं ऐसे ही रह लेता। या लैतनी लम ऊतिय किताबिया, फिर वो कहेगा ये मेरे बारे में क्या फैसला हो गया। कानतिल काज़ी मा अगना अन्नी मालिया, मैं तो दुनिया की कमाई के पीछे लग लग के अपनी आखिरत खराब कर बैठा, और इसी माल की कमाई ने, इसी चौधराहट के जो फखर था मुझे और चौधराहट के मुझे जो आवाज थी और चौधराहट की वजह से मुझे जो अपने ऊपर नाज था, इसने तो मुझे तबाह बर्बाद कर दिया। ये आपस में अपने आप से बातें कर रहा होगा, अपने आप को कोस रहा होगा, लेकिन उस वक्त अपने आप को कोसने से कोई फायदा, अपने आप को मुलामत से कोई फायदा, बल्कि जिस बेली दी खातिर असी नमाज़ें छोड़ी जाते हैं ना, शैतान कल क़यामत के दिन वो भी नजर आ जाएगा। वो कहेगा हाँ भाई सुना, तेरी वजह से मेरे साथ ही हुआ। वो कहेगा परा चल फला तो वलूमू अनफुसकुम, मेरे ते क्यों दूर दूर कर दे, अपने आप ते कर, मैं तेरे जबरदस्ती को रोक कैसी। उत्थे फिर बंदे नूं जदों ये जवाब मिलेगा कि मेरे नाल तेरा कोई काम नहीं, अज तू अपना कर, उसने अपनी पई होनी। और आज हम बड़ा उसके, वो कह रहे चल पढ़ लेगा, मैं कह रहा चलो, वो कह चल दोस्तों के पास चलते, वो कह रहा फलानी जगह चलते, वो कह रहा फलाना काम कर लेते, कह रहे ठीक है कर लेते, परवाही कोई। शैतान ने कल दूर से हमें यूं टाटा बाय बाय करके निकल जाना है, और अपना ठीक है भाई तुम अपने भुगतो, मैं ये जानता था। जो सख्त वक्त में काम ना आए वो दोस्त हो सकता है, जो बर्बादी की तरफ इंसान को ले जाए वो दोस्त हो सकता है, जो गलत अंजाम की तरफ बंदे को ले जाए वो दोस्त हो सकता है। ये सारे उसके नतीजे हैं। कुरान ऐलान करता है इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा भी बाप है, तुम्हारा भी दुश्मन है, और तुम्हारे बाप दादा का दुश्मन रहा है। तो अपने दुश्मन ते अपने बाप दादे दे दुश्मन नाल बंदा यारी लांदा कि उहदे नाल दुश्मनी करदा है। ਜਿਹੜੇ ਨਸਲੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ खूनी, वो अपने बाप दादा के दुश्मन को भी अपना दुश्मन समझते हैं ते अपने दुश्मन को भी अपना दुश्मन। बाद छोटी मोटी हो जाती है ना इंसान की चपकलश हो गई, फिर सुलह हो गई, दुश्मन भी ऐसा जिसके सुलह ही कोई नहीं हुई। तो क्या कहेगा वो, खुज़ूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू। आज जिसको नामे अमाल बाएं हाथ में मिला है, पकड़ो उसको, जकड़ो उसको, और 70 हाथ लंबे जंजीर में इसको बांध दो। सबऊन ज़िराअन फस्लुकू। क्यों इसको नामा अमाल बाएं हाथ में मिला, क्यों इसको पकड़कर जहन्नम में बांधकर डाला जा रहा है। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। पहली गलती इसकी ये थी कि अल्लाह को नहीं मानता था, अल्लाह पर इसको ईमान और यकीन नहीं था। वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन। और दूसरी गलती ये कि इसकी जिंदगी में इसके पास माल तो बड़ा था, लेकिन गरीब का इसको ख्याल कोई नहीं था। आज से चंद साल पहले इतनी मालदारी नहीं थी, इतनी फरावानी नहीं थी, इतना पैसा नहीं था, लेकिन हर बंदे ने दूसरे की फिक्र होती सी। देखते होने जिहदे घर दाने होंदे ने, और सारे नूं या घर गला छड्डने या जोड़ा भी कोई आया उन्होंने दे छड्डे। साडे हुण घर आए पे उस दिन असीं कहते हैं बीबी किसी और टाइम अजे आए नहीं, बहाने
वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम। फरमाया आज दुनिया में इसने किसी गरीब का ख्याल नहीं रखा, जरूरतमंद का ख्याल नहीं रखा, मोहताज का ख्याल नहीं रखा। आज क़यामत के दिन इसका कोई यार बेली और दोस्त नहीं हो। मगर ना यही जो हम अल्लाह के नाम पर देते हैं, गरीब मिस्किन फकीर का ताउन करते हैं, यही लोग कल क़यामत के दिन भी हमारे सिफारिशी बनेंगे और अल्लाह के नाम पर जो दिया हुआ है ये भी हमारे लिए बख्शिश का जरिया बनेगा। हदीस में आता है, चलो बात उस तरफ निकल गई। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्क़ि तमरा। जैसे नमाज दोज़ख से बचाती है, बहुत सारी चीजें जो इंसान ने दोज़ख तो बचा दी है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े का बड़ा जिक्र फरमाया। फरमाया इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्क़ि तमरा, खजूर का एक दाना, एक दाने का आधा हिस्सा भी क्यों ना हो, वो अल्लाह अगर और कुछ नहीं दे सकते हो, इतना तुम्हारे पास है, वो भी अल्लाह के नाम पर दिया करो। वही खजूर का आधा टुकड़ा अल्लाह के नाम पर दिया हुआ तुम्हारे जहन्नम से बचाव का जरिया बने। इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्क़ि तमरा। और मौलाना अब्दुल सकरी साहब दारुल कराची के नायब मुफ्ती हैं, उनका मैं सुन रहा था, फरमाते हैं कि बहुत सारे बंदे इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी बयान फरमाई है कि जन्नत के सारे दरवाजे उनको पुकारेंगे। हर एक जन्नत के अमल का दरवाजा है, नमाजियों का दरवाजा, फिर रोजादारों का दरवाजा, फिर ज़कात देने वालों का, हज करने वालों का, इस तरह करते करते जन्नत के जो दरवाजे हैं वो हर बंदा जिन जिस चीज का ज़ौक़ और शौक होएगा उस हिसाब नाल वो जन्नत में दाखिल। वो फरमाने लगे इंसान सदका करता है, सदका करने में अगर वो एक काम कर ले, बड़ा आसान सा अमल है, एक काम कर ले, एक नोट देने के बजाय 2 नोट दे। कितने? एक नोट देने के बजाय 2 नोट। मसलन 100 देना है ना, तो एक के बजाय 50-50 के 2 दे। 1000 देना है, 1000 का नोट देने के बजाय 500-500 के 2 दे। इस तरह चढ़ता जाए। अब तो पहले तो 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, अब जहां से शुरू है कि जो बंदा ये करेगा, उन्होंने बकायदा हदीस का हवाला दिया है, जो बंदा ये करेगा कल क़यामत के दिन जाएगा, जन्नत के 8 दरवाजे उस बंदे को बुलाएंगे कि आ जा भाई हमारे से जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो कोशिश करनी चाहिए रमजान का महीना, एक तो हम नमाजों की पाबंदी करने वाले बन जाए, क्योंकि नमाजों की पाबंदी करने वाले बंदे को कल क़यामत के दिन उसका नामा अमाल इंशाअल्लाह दाएं हाथ में मिले। कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वल अमलि वन निय्या। रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल मुस्सल्लीन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिन इबादिकल मुंतख़बीन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिन इबादिकस सालिहीन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इजअलनी इंदका वलीजा। अल्लाहुम्मा इजअलनी इंदका वलीजा। अल्लाहुम्मा इजअलनी इंदका वलीजा वजअलनी इंदका हुस्न ज़िक्रा व हुस्न मआब। रब्बना आतिना मा वअदतना अला रसूलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक।